نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآنک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت. آپ سب کو خوش آمدید ہے لیکچر نمبر 30 میں. بیچ 1 کا لیکچر نمبر 30 ہوتا ہے انشاءاللہ. جملہ فعلیہ ہم سٹارٹ کر چکے ہیں. آج کے جو ہمارے ٹاپک ہے منصوب ضمیر متصل بطور مفعول اور جملہ فعلیہ میں متعلق فعل. جملہ فعلیہ اس کے دو مین اجزاء ہیں یا پارٹس ہیں، فعل اور فاعل. اس بات کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا. فاعل دو طرح سے آتا ہے، فاعل مستتر اور فاعل ظاہر، یعنی اسم ظاہر کی صورت میں. یہ سب ہم الحمدللہ ان کو پڑھ چکے ہیں. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا. اس کے بعد مفعول، ایسا اسم جس پر فعل واقع ہو، مفعول کہلاتا ہے. پریویس لیکچر میں ہم نے لازم اور متعدی افعال سیکھے. ہم نے دیکھا کہ متعدی افعال کے ساتھ مفعول ضرور آتا ہے، یعنی کہ ایسا فعل جس کا افیکٹ کسی دوسری چیز پر بھی ہو. ٹھیک ہے، اور لازم میں فعل کا افیکٹ فاعل پر خود پر ہوتا ہے. جملہ فعلیہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا. جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد آپ کو حالت رفع میں ملنے والا اسم ہمیشہ فاعل ہوگا اور حالت نصب میں ملنے والا اسم مفعول ہوگا. ہم نے مفعول دیکھا کس کس طرح سے آتا ہے. اسم ظاہر کی صورت میں ہم نے اس کو سیکھا اور سمجھا. یہاں آپ کو ایک بات اچھے سے یاد رکھنی ہے کہ اپنے دوپٹے کے پہلو سے یہ بات باندھ لیجئے کہ جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد حالت رفع میں ملنے والا اسم ہمیشہ فاعل ہوگا، اور حالت دوسرے پہلو سے یہ بات باندھ لیں کہ حالت رفع نصب میں ملنے والا اسم ہمیشہ مفعول ہوگا. ٹھیک ہے، یہ دو باتیں اپنے دوپٹے سے باندھ لیں کہ حالت رفع میں فاعل ہوگا اور حالت نصب میں مفعول ہوگا. آگے چلتے ہیں. جملہ فعلیہ کی ترتیب کیا ہے؟ فعل، فاعل اور مفعول. جب جملہ فعلیہ کا اردو ترجمہ کیا جائے گا تو کیسے ہوگا؟ پہلے ہم فاعل کا ذکر کریں گے، پھر ہم مفعول کا ذکر کریں گے اور پھر فعل کا ذکر آئے، یعنی فاعل، مفعول اور پھر فعل. یہ تو تھی تھوڑی سی پریویس ڈیٹیل. آج ہمیں ضمائر کو بطور مفعول استعمال کرنا ہے. یہ بات ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ مفعول کسی اسم جب ضمیر جو ہے وہ کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے، کسی بھی اسم کو ریپلیس کرتی ہے. آپ ان کے چارٹس پڑھ چکے ہیں. حالت رفع کا چارٹ اچھے سے سمجھا، پڑھا اور یاد کیا ہوا ہے آپ نے. تو ہمیں آج دوسرے چارٹ کو دیکھنا ہے جو کہ نصب و جر کا ہے. لیکن کیونکہ ہمارا ٹاپک مفعول ہے تو ہم منصوب ضمائر استعمال کریں گے. ہم انہیں ان کی جو اعرابی حالت ہے نصب کنسیڈر کریں گے. مذکر غائب پہ کا ہے اٹیچڈ ہوں، اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہوں. مؤنث غائب اٹیچڈ ہاں، اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہوں. اب جو یہ اٹیچڈ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ہم نے سیکھا تھا کہ جا کر کسی بھی اسم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اس کے ساتھ جا کر جوڑ لیتے ہیں، چپکا لیتے ہیں. مذکر حاضر اٹیچڈ کا، اٹیچڈ کما، اٹیچڈ کم. مؤنث حاضر اٹیچڈ کی، اٹیچڈ کما، اٹیچڈ کمنا. متکلم اٹیچ یا سلیش نی. جب یہ ہم تب پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اٹیچڈ یا ہے یہ اسم کے ساتھ آتی ہے اور اٹیچڈ نی فعل کے ساتھ آتی ہے.
اور آج ہم اٹیچڈ نی کا ہی استعمال کریں اور اٹیچ نہ ہو کے لیے۔ چارٹ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب ہم ان ضمائر کے معنی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اٹیچڈ ہوں، اس کا، اسے۔ اٹیچڈ ہوں ان دونوں کا، ان دونوں کو۔ اٹیچڈ ہوں ان سب کا، ان سب کو۔ اٹیچڈ ہاں، اچھا مونس غائب کے لیے بھی سیم میننگ ہی یوز ہوں گے۔ مذکر حاضر اٹیچڈ کا، تمہارا، تمہیں۔ مذکر حاضر اٹیچڈ کا، تمہارا، تمہیں۔ اٹیچڈ ہما، تم دونوں کا، تم دونوں کو۔ اٹیچڈ تم سب کا یا تم سب کو۔ یہی میننگس مونس حاضر کے لیے بھی استعمال ہوں گے، یہی معنی ان کے لیے آئیں گے۔ متکلم کے لیے دیکھیں، واحد متکلم۔ اٹیچ نی، میرا یا مجھے۔ اٹیچ نہ، ہمارا یا ہمیں۔ اور یہی میننگ ہم مثنیٰ کے لیے جب لے کے آئیں گے، جمع متکلم کا صیغہ مثنیٰ کے لیے آئے گا تو تب بھی یہی معنی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ضمائر کو ہم کس کس طرح سے استعمال کرتے آئے ہیں۔ سب سے پہلے نصب اور جر کے جو ضمائر ہیں یہ کیسے کیسے آ سکتے ہیں۔ جب ضمائر اسم کے ساتھ آئیں گے تو مجرور ہوں گے، مضاف الیہ بنیں گے۔ اگزامپل کیا ہے؟ ولدہ، اس کا لڑکا۔ جب ضمائر حرف جر کے ساتھ آئیں گے تو مجرور ہوں گے، فی ہی، اس میں۔ دیکھیں دونوں جگہ پر ضمائر یہی استعمال ہوئے ہیں، لیکن ان کی اعرابی حالت کیا ہے؟ اسم کے بعد آئیں گے تو حالت جر میں ہوں گے، حرف جر کے بعد آئیں گے تو ڈیفینیٹلی حالت جر میں ہوں گے۔ جب ضمائر حرف تاکید انا کا اسم بنیں گے تو منصوب ہوں گے، انہو، ٹھیک ہے۔ اور جب ضمائر فعل کے ساتھ ہوں گے تو منصوب ہوں گے، ضربہ، اس نے اس کو مارا۔ تو یہ ان کی پوزیشن ہے، ان کا اعراب ہے، یہ ان کا سٹیٹس ہے۔ میں نے ایک فعل لیا ہے ضربہ، روٹ لیٹر ہے ضاد را با، وزن ہے اس کا فعل۔ اب اس کو ہم اسی اٹیچ ضمائر کی گردان میں لگائیں گے اور انہیں مفعول بنائیں گے اور یہ ان کے ساتھ فعل ہوگا۔ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر اس میں فاعل مستتر ہے۔ تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اٹیچ ضمائر کیسے فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئیں گے اور پھر ہم اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھیں گے۔ ضربہ، ضربہما، ضربہم، مؤنث غائب، ضربہا، ضربہما، ضربہن۔ اب دیکھیے کہ فعل کا پہلا صیغہ ہے اور اس کے آگے جو اٹیچ ضمائر ہیں وہ مفعول بن کر اٹیچ ہوتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ۔ مذکر حاضر ضربکا، ضربکما، ضربکم۔ مؤنث حاضر ضربکی، ضربکما، ضربکن۔ اس کا متکلم کے دیکھیے ضربانی۔ دیکھیے اب یہاں پر یہ جو یا متکلم سے پہلے نون لایا گیا ہے نا، یہ ان فعل اور یا متکلم کی لڑائی ہونے سے بچانے کے لیے لایا گیا ہے۔ یہ بیچ بچاؤ کرنے والا نون ہے، اسے نون وقایا کہتے ہیں۔ کیونکہ فعل پر زیر نہیں آتی اس لیے، اور جو یا ہے وہ اپنے سے پہلے زیر ڈیمانڈ کرتی ہے، تو ان دونوں کے کلیش کو بچانے کے لیے یہاں پر بیچ میں نون وقایا لایا گیا ہے جسے زیر دی گئی۔ ضربنا، یہ مثنیٰ کا صیغہ ہو جائے گا، ضربنا جمع متکلم کا ہو جائے گا۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان کے معنی سمجھتے ہیں۔ ضربہ، مفعول ہو، اس نے اسے مارا۔ اس نے، ہوا ضمیر فاعل مستتر اور اسے مفعول ہے، مارا فعل ہے۔ اب اسی طرح آگے دیکھتے جائیے گا۔ ہما، اس نے ان دونوں کو مارا۔ ضربہم، ہم مفعول، اس نے ان سب کو مارا۔ ضربہا، ہاں مفعول، اس نے اسے مارا۔ ضربہما،
हुमा मफूल, उसने उन दोनों को मारा। ज़रबहुन्ना, हुन्ना मफूल, उसने उन सबको मारा। ज़रबका, काफ समीर, उसने तुम्हें मारा। ज़रबकुमा, कुमा, उसने तुम दोनों को मारा। ज़रबकुम, कुम मफूल, उसने तुम सबको मारा। ज़रबकी, काफ जमीर मफूल, उसने तुम्हें मारा। ज़रबकुमा, कुमा मफूल, उसने तुम दोनों को मारा। ज़रबकुन्ना, कुन्ना मफूल, उसने तुम सबको मारा। मुतकल्लिम ज़रबनी, नी मफूल, उसने मुझे मारा। ज़रबना, ना मुसन्ना के लिए, उसने हम दोनों को मारा। ज़रबना, ना जमा मुतकल्लिम के लिए, उसने हम, जो ना मफूल, उसने हम सबको मारा। तो ये इसके इस तरह से मायने बनेंगे। अब आप ज़ोराबा की जगह गर्दान का कोई और सीगा भी इधर लेकर आ सकते हैं। आप मुसन्ना का सीगा ला सकते हैं ज़ोराबा। फिर आप इसकी जगह कोई भी गर्दान का, पूरी गर्दान में से कोई एक सीगा लाकर आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। 14 के 14 सीगों के साथ आप ये अटैच जमायर को मफूल लगाकर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। और जो स्टूडेंट्स करना चाहें वो मुझे पर्सनल में चेक करवा सकती हैं, जो क्लास ग्रुप है उसमें चेक करवा सकती हैं। अब जुमला फेलियर की तरतीब पर हमें गौर करना है मफूल ज़मीर के साथ। सिंपल तरतीब ये थी, फेल, फाइल और मफूल, ये अरबी इबारत की तरतीब है, ठीक। फिर देखिए, जब हमारे पास आगे क्या आ रहा है, फेल प्लस मफूल अटैच्ड ज़मीर। मैंने आपसे कहा कि आपको ये बात याद रखनी है कि फेल के बाद आने वाली ज़मीर मफूल होगी, हालत नस्ब में होगी, और फाइल जाहिर। अच्छा, अब यहाँ देखिए कि जब आपके पास जुमला फेलियर में फाइल जाहिर आएगा, तो जो आपके पास जमीर होगी वो फेल के साथ अटैच्ड हुई होगी, वो मफूल होगी, ठीक है। यानी वो फेल और फाइल के बीच में आ जाएगी। जब आपका फाइल मुस्ततिर होगा तब देखिए, फेल प्लस फाइल मुस्ततिर जो हिडन होते हैं, गर्दान के 12 सीखे हैं जो, उनमें पहला और चौथा, चौथा छोड़कर बाकी गर्दान के 12 सीखों में फाइल उनमें छुपा हुआ है। जब ऐसा सीगा आएगा तो वो उसके अंदर ही होगा फाइल, और मफूल अटैच जमीर की सूरत में उसी फेल के साथ अटैच हो जाएगा। इनको हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे इंशाल्लाह। अब जुमला फेलिया की तरतीब, ये वो सारी तरतीब थी। अब जुमला फेलिया का उर्दू तर्जमा, तो तर्जमा वैसे ही रहेगा। जो है हमारा फाइल का जिक्र पहले आएगा, फाइल फिर मफूल और फिर फेल। जो उर्दू ट्रांसलेशन है ना, उसका सीक्वेंस सेम रहेगा। अच्छा, मफूल की जगह मुनासिब जमीर, मंसूब जमीर मुत्तसिल लगाएं। अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहता है, जिन्हें लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है, तो हैंड रेज कर सकती हैं, नहीं तो मैं इसको खुद से पहले कंटिन्यू करती हूँ, फिर आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग देखिए। सबसे पहले मेरे पास मैं अरबी इबारत शो करूंगी, फिर हम उसमें से फेल का मादा निकालेंगे, उसका वजन निकालेंगे। फिर हम उस मफूल की जगह, हमारे पास जो मफूल होगा उसकी जगह जमीर लगाएंगे, मंसूब जमीर मुत्तसिल, और फिर हम उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास नसरा खालिदुन नासिरन। नसरा फेल है, फेल माजी, नून स्वादरा इसका रूट लेटर है, इसका वजन है फाला। खालिदुन इसका फाइल है, हालत रफा में है। नासिरन हालत नस्ब में है, ये मफूल है। अब मैंने मफूल को ग्रीन इसलिए लिखा कि हमें इसकी जगह जो है जमीर लगानी है। तो हम अटैच जमीर कौन सी लाएंगे, हम उस मफूल का, उसका अदद और उसकी जिन्स देखेंगे। तो नासिरन वाहिद है और मुज़क्कर है, तो मैं यहाँ पर हूँ जमीर लेकर आऊंगी। नसरहू खालिदुन, ठीक है। अभी जो मैंने आपको तरतीब बताई थी कि फेल के बाद आपको जो अटैच जमीर मिलेगी वो मफूल होगी। तो नसरहू, इसमें जो हु जमीर आ रही है ना, ये नासिरन को रिप्रेजेंट कर रही है पीछे, ठीक है। खालिद ने
اس کی مدد کی. اب پہلے ہم نے کہا ناصر خالدن ناصرن، خالد نے ناصر کی مدد کی. لیکن جب ہم ضمیر لے آئے تو ہم نے ترجمہ اس ضمیر کے حساب سے کیا کہ خالد نے اس کی مدد کی. نصرہ خالدن، خالد نے اس کی مدد کی. اب اردو میں بھی دیکھیے نا آپ کہ فائل خالد پہلے آیا، اس کی مفعول، ٹھیک ہے، وہ اس کے بعد آیا، اور مدد کی، مدد کرنا فعل آخر میں ہو گیا. چلو چلیں سمجھی، پلیز چیک یور مائک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمجھیے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ جی الحمدللہ. چلے آپ کیجیے، بسم اللہ کیجیے. پہلے نصر اللہ ٹھیک. ابراہیم، ہوں اللہ نے ہوں. ابراہیم کی مدد کی. سمجھیے، ترجمہ ہم پہلے نہیں کریں گے. ہم پہلے فعل، فاعل اور مفعول کو الگ کر لیں گے، پھر ہم فعل کا مادہ نکالیں گے اور وزن. اس کے بعد ہم مفعول کی جگہ ضمیر لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ ترجمہ آخر میں ہے. جی کیجیے. جی. مادہ فعل نصرہ ہے، اللہ فاعل ہے، ابراہیم مفعول ہے، لفظ. اور اس کا مادہ نون صاد را، ہوں. وزن فعلا، مفعول. اب ضمیر لگانا باجی. جی بالکل. نصرہ ابراہیم، نہیں نصرہ اللہ. ہاں، نصر اللہ، نصرہ اللہ، ٹھیک ہے، ملا کر پڑھیں گے نا. تو اب آپ جی اس کا ترجمہ کیسے کریں گے، سمجھیے. باجی فرسٹ کا. پہلے ہاں جی، نہیں یہ پہلے اس کا کیجیے. فرسٹ. جی مفعول ظاہر جی. کر. اللہ نے ابراہیم کی مدد کی. ابراہیم کی اور یہاں پہ کیا تھا؟ مدد. اللہ نے اس کی مدد کی. شاباش. اللہ نے اس کی یا ان کی، ہم حضرت ابراہیم کی بات کر رہے ہیں تو ہم ان کی مدد کی. ویری گڈ. ایک اور کر دی سمجھ جی. جی. ضربت فاطمۃ عائشہ. ہوں. ضربت یہاں پہ فعل ہے، مؤنث واحد کا ہے، غائب. شاباش. اور فائل جو ہے سو فاطمہ ہے، کیونکہ یہ رفع حالت میں ہے. گڈ. عائشہ مفعول ہے کیونکہ ہوں. یہ نصب حالت میں ہے. گڈ. اور اس کا مادہ ضاد را با ہے، وزن فعلا ہے. ہوں. اور اگر مفعول ضمیر سے اگر یہ لگائے تو ذرا بہا آتا، مؤنث سے اس لیے، اور فاطمہ تو آتا. ہوں. آپ پڑھیے. ذرا بتھا فاطمہ تو. ہاں. تو فاطمہ کی. ٹھیک ہے. جی. جب آپ ضمیر اٹیچ ہو جائے گی نا تو آپ کا فعل کی کوئی حرکت چینج نہیں ہوگی. یہ چوتھا سیگا سیم ایسے ہی رہا. ٹھیک ہے. ضربت ہا جی فاطمہ تو. اب ٹرانسلیشن کیجئے. جی. یہ فرسٹ کا ٹرانسلیشن، فاطمہ نے عائشہ کو مارا. ہوں. اور مفعول ضمیر والے کا اس نے، ہوں. فاطمہ نے اس کو مارا. شاباش. گڈ، ویری گڈ، بہت اچھے، ماشاء اللہ. بارک اللہ فیکی. شاداب آپ آ جائیے. سمجھی، میوٹ کر لیں پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاداب کیجیے. سمیعت حامدا وزینبا. ہوں. اس میں جو مادہ ہے وہ سین میم عین ہے، ہوں. اور وزن ہے سمیع. اور فائل. اس میں مفعول ضمیر جو ہے وہ سمیعت میں یا کی آئے گی، ہاں کی آئے گی یعنی. سمعتا، تا زبر تا. انتا. انتا. گڈ. ٹھیک ہے. تو کون سا سیگا ہوا؟ آپ. میرا ہوں. واحد مذکر حاضر. انتا واحد مذکر حاضر ہے. ہاں. ٹھیک ہے. اب مفعول کیا ہے؟ مفعول اس میں منصوب ہے حامدن اور زینبا. ہوں.
चलें, अब इनकी जगह आपने जमीर लगानी है, तो क्या लगाएंगी जमीर? शादाब, आपकी आपकी बात करके आवाज क्या ड्रॉप, क्या बनेगी? थोड़ा सा ऊंचा बोलें, और आवाज ड्रॉप हो रही है। चलें, बताइए। सवाल दोबारा कीजिएगा, क्या चीज आपने पूछी है? मैंने कहा अब आप कौन सी जमीर लगाएंगी मफूल की जगह? हुमा की लगेगी ना, दो है तो। जो हुमा की लगेगी। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि हम यहाँ पे जो है किसके लिए, हामिदन के हिसाब से लगा रही हैं या जैनबा के? हामिद और जैनब ये दोनों दो हैं, तो दोनों का डुअल तस्निया की मेरे ख्याल में लगेगी। तस्निया की लगेगी, और क्योंकि हमारे क्योंकि पास, उसने उन दोनों को सुना ना। हाँ, तो उसने नहीं, तुमने, मेल है ना, तो हम उसको उसकी लगाएंगे, ठीक है। चलें, आप पढ़िए इसको, मैंने देखे। हुमा। हम्म। समय का हुमा। समिअता हुमा, ठीक है। तुमने उन दोनों को सुना। हाँ, एक मिनट। आपकी ना आवाज ड्रॉप हो रही है, आप दोबारा रीज्वाइन कीजिए प्लीज। तुमने उन दो, ठीक है मैम, अब मैं आ दोबारा। गई, अब आ गई है, ठीक है, शायद आप, तुमने उन दोनों को सुना, ठीक है। समेता, अंता जमीर, तुमने, हुमा, उन दोनों को सुना, ठीक है। आप हैं, शायद आपकी चली गई हैं। यास्मीन, आप आ जाइए, फिर मैं दोबारा आ जाइए, जी शायद। मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चले, देखिएगा, पढ़िए। जी। खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्द। गुड। अब मुझे फेल बताइए क्या है? जी, यहाँ पे फेल है खलक़। हम्म। जलाला यहाँ पर है फाइल। गुड। और अस्समावाति वल अर्द मफऊल। एक्सीलेंट। चल, अब मुझे आप तर्जुमा करें पहले इसका, जरा क्या बोलते हैं? जी, अल्लाह ने जमीन और आसमान बनाए, जी, अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया, ठीक है। अब इसकी, पैदा किया। जी। ठीक है, अब फेल है हमारे पास, फाला का, मादा। वो कटर है, फाला का वजन है। अब आपने जमीर लगानी है मफूल की जगह पे, तो जी। लगाइए। खल- खलक़हु खलक़हु समावाति वल अर्द। देखिए, आपके पास मफूल, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, गलत पढ़ा मैंने। जी जी। जी, अल्लाह तो फाइल है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा खलक का। हाँ होगा ना मैम। हम्म, देखिए, दो है ना। खलक का हुमा। फाला का हुमा, ये वाव आतिफा है, अतफ है, तो फिर हम उन दोनों को कंसीडर जी। करेंगे, ठीक है। खलक का हुमल्लाहु। जी जी। ठीक है, फाला का हुमल्लाहु। तो आप ट्रांसलेशन कैसे अल्लाह। करेंगे? जी। अल्लाह ने उन दोनों को पैदा किया। इन दोनों को पैदा किया, वेरी गुड। अब समझ आ गया ना यास्मीन पैटर्न? जी अब जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैम। चलिए कीजिए। कतलल मुस्लिमून मुस्लिमून ज़ालिमीन। हम्म। मैम यहाँ पर जो कतला है, ये होगा फेल। हम्म। अल मुस्लिमून फाइल। हम्म। अज़्ज़ालिमीन ये है मफऊल। गुड। मादा है कॉफ ता लाम। हम्म। वजन है फ़अला। तर्जुमा कीजिए जरा इसका पहले। जी। आ, मुस- मुसलमानों ने हम्म, जुल्म करने वालों। जुल्म करने वालों को कत्ल किया। गुड। अब आपके पास मफूल क्या, आपने मुझे बताया ज़ालिमीना, इसका आदत क्या है और जिन्स क्या है, उस हिसाब से आप मफूल ढूंढेंगे, बताइए। ओके। कतलहुम शाबाश। कतलहुमुल मुस्लिमून। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपने पिक कर लिया माशाल्लाह। अब इसकी ट्रांसलेशन करें जरा, जी। फाइल को अ, पहले लगाएं। मुसलमानों ने। जी हम्म। जी। मुसलमानों ने हम्म। उन सबको कत्ल किया। माशाल्लाह, वेरी गुड।
यास्मीन एक और कीजिए। जी जी मैम। फतहल खादिमुल अबवाब। हम्म। फतह फेल है, अल हम्म। खादिमु फाइल, अल अबवाब मफऊल। गुड। फातह मदा, वजन होगा फ़अला। तर्जुमा करें। जी मैम खादिम कहा जाएगा ना इसको। जी खादिम कहेंगे। खादिम ने दरवाजा खोला। अब वाबा, बाबुन, अब वाब। दरवाजे खोले। जी हाँ जी जी दरवाजे। हाँ। ठीक। खादिम ने दरवाजे खोले। खोले थे। अब आ, आपने अब वाबा आपके पास कौन क्या आ रहा है इसका, बताइए। जमा है। ये जमा है बैराकिल की। गुड। अब आप क्या लगाएंगे मुझे ये भी बता दीजिए। जहाँ पे वाहिद मुअन्नस की ज़मीर लगेगी। एक्सीलेंट, वेरी गुड, माशाल्लाह। चलें लगाइए फिर अब। जी फतहा हम्म, अब अल खादिम। फतह, फतह हाँ, हल खा। फतहा अल खादिम जी। हाँ फतह हल खादिमु। ठीक है, लंबा नहीं खींचेंगे ना, मिला के आगे पढ़ लेंगे उसको, ठीक। जी जी फतहा अल खादिम जी मैम। हम्म। अब ट्रांसलेशन करें। खादिम, खादिम ने उसे खोला। हाँ, खादिम ने उसको खोला, ठीक है। तो क्योंकि हमने अब वो हा की जमीर के हिसाब से तर्जुमा करना है ना यहाँ पर, ठीक। चले, बारकल्लाह जी, फीकी, वेरी गुड यास्मीन, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। भैया की जज़ाकल्लाह कादरी। खैर। मुफरुका आप आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। चलें कीजिए मुफरुका। समियातिन निसाउन निसाअ। हम्म। समिया फ़ाइल, अन्निसाउ फ़ाइल, अन्निसाअ मफ़ऊल। गुड। औरतों ने औरतों को सुना। गुड। आप रूट लेटर निकाल दें। जी मैं सीन मीम ऐन। हम्म। सीन मीम आई। ओके। और वजन। फ़ाइला। गुड। ओके। अब हाँ, आपके पास जो मफूल है उसकी जगह कौन सी जमीर लाएंगी मफरूका। हम्म, हाँ। देखिए अन्निसा वाहिद है, जमा है, मुसन्ना है। जमा जमा जमा। अब हुन्ना। गुड, वेरी गुड, लगाइए। जब अम, अब ये देखिए, पढ़ें, पढ़ें जरा। समियत हुन्ना निसाउ। मैंने आपसे अभी पीछे बताया था ना कि जब फेल के साथ जमीर अटैच हो जाएगी ना तो फिर उसकी वो अपनी फेल जो है ओरिजिनल हालत में लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पीछे समी जी अतिन निसाउ हमें क्योंकि आगे ता साकिन थी, मौरिफ बिल नाम इसम के साथ मिलाना था तो जेर लेकर आए। लेकिन अब उसके आगे मफूल अटैच हो गया तो फेल अपनी असली हालत में लिखा जाएगा, ठीक है। इस बात को आप सब ने याद रखना है। दोबारा एक दफा पढ़ दें। जी मैं समियातिन निसाउन निसाअ। नहीं नहीं, सिर्फ। औरतों ने औरतों को सुना। हम्म। समियत हुन्ना निसाउ। हम्म, तूने उन सब औरतों को सुना। ठीक है। जी। हुन्ना तो मैम उन्होंने होगा, करेंगे तूने। एक मिनट इसकी, मतलब मैं कॉपी पेस्ट ही हो गई है, आप इसको हम करेंगे कि औरतों ने उन सबको सुना, ठीक है। जी औरतों ने उन सबको जी सुना, ऐसे। ओके। जी। एक ये। आ, हाफिज हामिदुद हामिदुद दरसल जदीदा। हम्म। हाफिजा फेल है। हम्म। हा फा जो मादा है, और फाइल इसका वजन है। हम्म। हामिदुन फाइल है, अदरसल जदीदा मुरक्कब तौसीफी होकर मफऊल। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। ओके। अब आप अदरसल जदीदा इस मुरक्कब तौसीफी के किस हिस्से को देखेंगे जमीर लेने के लिए। कौन लीड। मौसूफ को। शाबाश, मौसू। खत है। मौसूफ को जी सिफत फॉलो करेगी ना। ओके, गुड, वेरी गुड। आप बताइए कि कौन सी जमीर लेकर आएंगी। हम्म,
वाहिद है और मुज़क्कर है, बताइए। जमीर में ये दरअसल जदीदा की जमीर लानी है, जी जी। तो वाहिद ठीक है, मुजक्कर। हाँ वाहिद मुज़क्कर। चलें जी। पढ़िए, मैंने शो किया। हाफिजहू, हाफिजहू हामिदुन। ट्रांसलेशन पढ़िए। हामिद ने उसे याद किया। लास्ट कर दीजिए। जी। दरबत फातिमतुल वला वलद सगीरा। हम्म। जी। फातिमा ने छोटे लड़के को मारा। गुड। दरबा दौद रा बा इसका मादा है, और दरबा फ़अला इसका वजन है। हम्म। फातिमतु फाइल है, अल वलद सगीरा मौसूफ सिफत मुरक्कब तौसीफी मफऊल है। शाबाश। आप कौन सी जमीर लाएंगी इसकी जगह? अ, वाहिद, वाहिद मुजक्कर। ओके, लगाइए। दरबत हु फातिमतु, हम्म। फातिमा ने उससे मारा। फातिमा ने उसे मारा, ठीक है। समझ आ गए पॉइंट्स की? चलें, बारक जी मैम। गुड। जज़ाकल्लाह। वही ठीक। अच्छा, अब आ जाइए समीरा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम कीजिए। जी ज- जी ज़बहल मुस्लिमूनल बकरा था। हम्म। ज़बह फेल, मुस्लिमूना फाइल और बकरा मफूल। और वेरी ज़बह का वजन है जाल बहा, और ये फाला के वजन पे है। वेरी गुड। तो इस इसका अब ये बनेगा ज़बा ज़बहा हम्म। तल तुल मुस्लिमूना। एक मिनट, आप बकरा की जगह ज़बहा कौन सी जमीन लाएंगे? ज़बहल इसकी जगह वो आ जाएगी, बकरा की जगह हा आ जाएगा, ये मुन्नस है ना। गुड। चलिए पढ़िए जल्दी से इसको। ज़बहा हल मुस्लिमूना, हम्म। मुसलमानों ने उसको ज़बह किया गुड, वेरी या गुड, उसे ज़बह किया। वेरी गुड। नसरा हाजल मुअल्लिमु उलाइकत तुलाबु। नसरा तुल्लाबा, तुल्लाबा, ठीक है। तुलाबा, सॉरी, हम्म। तुलाबा। हम्म। नसरा फेल, हाजल मुअल्लिमु ये फाइल, उलाइकत तुलाबा ये मफूल। गुड। नसरा फेल, ये और सॉरी वो तो बता दिया। ये इसका वजन है फाल, मादा है नून स्वाद रा, और वजन इसका है फाला। हम्म। और ये जमा है उलाइकत तुलाबा। हम्म। ये इसका हो जाएगा नसरा हूँ, नसरा हूँ मुल हाजल मुअल्लिम मुअल्लिम। शाबाश। चलें पढ़िए। मुअल्लिम ने, इस मुअल्लिम ने उनकी मदद की। उन सब की मदद की, वेरी गुड, माशाल्लाह। लास्ट कीजिए आप। शरीबल वलदुल मा, हम्म। शरीबा फेल, वलदु फाइल और मा मफूल। हम्म। शरीबा का वजन है शीन रा बा, हम्म। और ये फाइला के वजन पे है। और ये अल वलदुल माऊ ये मरकबे तौसीफी बन गया। अल वलदुल माऊ एक मिनट, एक तो मिनट, एक मिनट। जी। अल वलदू हालत रफा में है और माँ के ओ साथ। हाँ सारी गलत, हाँ गलत गलत, हाँ जी वो फर्क है, फर्क है। हम्म। सही। हाँ, क्या बना? हाँ ये हो जाएगा ना शराबा। देखिए, मैंने आपको बताया था माऊ ऐसा है ये इसम कि इसके आखिर में आपको अलामती मुन्नस तो मिल रहा है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये असल में क्या है, मुजक्कर है। आप लगाइए। मुजफ्फर, ठीक है। शराबा वो वेरी सारी गुड खत्म होने लगा। नहीं, शराबाहुल शाराबा भी वलदु, नहीं है समीरा जी, शारीबा। शरीबा शरीबा, वो वेरी गुड को नजर लगी। शरीबाहुल वलदु। ओके, ठीक है। आप तर्जुमा पढ़ें। लड़के ने उसको पिया। जी।
ठीक हो गया, लड़की ने, उस लड़के ने, लड़के ने, उसने आ, क्या, क्यों ना, लड़के, अच्छा नहीं नहीं लड़के ने ठीक है, उसको, हाँ लड़के ने, ठीक है। हाँ, हाँ जी लड़के ने उसको वेरी, किया। बारकल्लाहु फीकी, वेरी गुड। ओके, ये फेल के बाद मिलने वाली जमीर क्या कहलाएगी शादाब? मफूल। गुड। चलिए अब स्टार्ट कीजिए। ज़रबत हु ज़ैनबु। हम्म, अब आपने मुझे क्या बताना है, पहले फेल बताएं, सीगा बताएं, मफूल बताएं और फाइल बताएं सारा। चलो, अच्छा इसमें फेल तो ज़रबा है, ज़रबत ये जो है फेल है, कौन सा सीगा है? ज़रबत है तो ये चौथा सीगा है। गुड। ओके, हु क्या है इसमें? हु इसका मफूल है, हु जमीर, गुड। वाहिद मुज़क्कर गायब की ये जमीर है। ठीक है, जैनबू? ज़ैनबु फाइल हो गया क्योंकि ये मरफू है। ठीक है, रूट लेटर निकालिए। ज़ाद रबा। ठीक है, फाइल क्या हुआ? ज़ैनबु। गुड। और मफूल जमीर क्या आई इधर? मफूल हु, हु की आएगी। जी शाबाश, अब ट्रांसलेशन करें जरा। ज़ैनब ने उस एक मुज़क्कर को मारा। बस, जैनब ने उसे मारा। चलें अगला कीजिए। हफिज़तु मा हु। हम्म, आधा क्या? हफिज़तु मा हु में जो मादा है, जी जी इसमें मादा हा फा और वा आएगा, और फाइल। इसमें फाइल जो है मरफू में तुमा, अंतुमा। वेरी गुड, अंतमा। ठीक है। और जी मफऊल इसमें जमीर आएगी हु की। ठीक है, ओके, अब ट्रांसलेशन तुम, कीजिए। तुम दोनों ने हिफाजत की उसकी, किसकी? उस हु की, यानी कि तुम दोनों ने उस। हाफिजा। हाफिजा फेल हमने क्या पढ़ा है? हा फा दुआ। हाफिज तुमा, तुम दोनों ने हिफ्ज याद किया किया। उसे, हाँ, तुम दोनों ने उसको याद किया, याद किया। ठीक है याद गुड। किया, ठीक है, ठीक ओके, है। और करें। समिअहुम, समिअहुम अल्लाहु। हम्म, इसमें मादा है सीन मीम और आइन, शाबाश। और इसमें फाइल है अल्लाहु, लफ्जुल जलाला है, हम्म। मरफू है, हम्म, और इसमें मफऊल जमीर हुम की है। चलें, वेरी गुड, ये मफूल हो गया। आप ट्रांसलेशन करें, समिया सुनना, तीन मीम आइन हाँ, से सुनना। अल्लाह ने सुना उन सबको, अल्लाह ने उन सबको सुना। अल्लाह ने उन सबको सुना। हमने अपना लफ्जी तर्जुमा नहीं करना, ठीक है, हमने अपना फ्लो में करना है, उर्दू में। ठीक है फाइल, मफूल और फिर फेल। गुड। जी। ओके, एक और कीजिए आप। नसरत, नसरत हुन्न, हुन्न क्या गया ये, सॉरी, नन निसा। हुन्न निसा। हम्म। अब इसमें मादा जो है वो नून सौद और रॉ है, हम्म, और इसमें फाइल जो है वो मरफू निसाउ है जमा का, शाबाश। और इसमें मफूल दमीर जो है अनतुन्ना की होगी, मुन्ना। हुन्ना, अच्छा हुन्ना की होगी, सॉरी हुन्ना देखिए की मुन्ना होगी, आ रहा है ना सामने, अनतुन्ना। उसी तरह। गुड। जी जी आप ट्रांसलेशन कीजिए। हुन्ना। निसाउन औरतों ने हम्म, मदद की, उन औरतों, औरतों ने उन औरतों की मदद की। बिल्कुल, औरतों ने उन औरतों की मदद की। ठीक है, वेरी गुड, अब ठीक है। आगे करते हैं। ओके, दरबतहु, इसमें जो मैम मादा है दौद रॉ दा, फेल क्या है? फाइल है अंता। फेल, फेल भी बताइए पहले। मैम दरबा फेल है, हम्म, ठीक है, अंत फाइल है, और वो मफूल जमीर है। गुड, ट्रांसलेशन कीजिए। तुमने उसको मारा, हाँ, या तूने उसको मारा। ठीक, दोनों तरह से। आगे कीजिए। नसरुहुम, हम्म, इसमें जो ओके गुड। मादा है नून सॉद रॉ, गुड। जी, और इसमें जो है मैम इसमें जा रही है, सही जा रही है, बताएं कौन सा फाइल है? मैम होम आए, हाँ जी, हुम आए। जमा का है ना गुड। इसमें।
हम आएगा। हम है ना यहाँ फाइल। आपने एक बात याद रखनी है कि जब आपके पास जमा मुजक्कर गायब का सीगा आएगा, ठीक है, तो जो उसका अलिफ है ना वो, जी। और उसके साथ मफूल अटैच जमीर आ जाएगी, तो वो अलिफ लिखने में नहीं आएगा जैसे इधर नहीं आ रहा। ठीक है, पॉइंट क्या है कि जमा मुजक्कर गायब जब आपके पास आएगा सीगा, तो मफूल जमीर होने की सूरत में ये अलिफ नहीं लिखा जाएगा, जैसे अभी नहीं लिखा जा गया। ठीक है, याद रखना है आप सबने। मैंने आगे पॉइंट्स में लिखा है, अभी आगे चलिए। अब मुझे मफूल जमीर बता दीजिए। होम। वेरी गुड। कंफ्यूज नहीं होना आपने यास्मीन, ठीक है, आप बिल्कुल जी सही जी पहुंच जी रही जी। थी। ये यहाँ पर जो अलिफ आना था ना, वो ड्रॉप हो गया। ठीक है, आगे आप ट्रांसलेशन जी। कीजिए। उन सब ने उन सबको मारा, उन सबकी मदद की। मदद की, इतनों को मार दिया। आगे कीजिए, इसको भी गौर से कीजिएगा जरा, कीजिए। स्वामी, जी जी, स्वामी तुमु, सॉरी पल्लू, स्वामी तुमु हुमा। हम्म, रूट लेटर हाँ निकालिए। तुम्हारा, जी जी, सीन मीम आइन हम्म। मादा हुआ। हम्म। इसमें जो फाइल है वो है अंतुम। शाबाश, वेरी गुड। अब यहाँ समझिए, जैसे वहां पर जमा मुजक्कर गायब में अलिफ लिखने में नहीं आया जमीर लगने की सूरत में, इसी तरह जब जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा होगा, ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको मफूल जमीर है, तो जो वो उसकी तुम थी ना, वो तुमू में चेंज हो जाएगी, वाओ ऐड हो जाएगी। ठीक है, तुम से वाह, तुमू समेत तुमू हुमा। तो यहाँ फाइल आपने बिल्कुल ठीक बताया, अंतुम फाइल है। और मफूल क्या हो गया? मफूल, मफूल है हुमा। मफूल जमीर हुमा। आप ट्रांसलेशन कीजिए। तुम सबने उन दोनों को सुना। वेरी गुड, एक और कीजिए। दरा जरा, दरबू, जरा दूर जी। या दरबू हूँ। तो हम्म। यहाँ पर मैम मादा है डॉग और बा, हम्म। और इसमें जो है हुम फाइल है, गुड। और हुम मफूल है। ठीक है, हम फाइल अ, है और हम ही उन, मफूल है। गुड, जी, उन सब ने उन सबको मारा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। लास्ट कीजिए। जी। हाफिज तुमु हु, हम्म। मादा है हा फा ज़ा, हम्म। और इसमें अंतुम फाइल है, हम्म। और हु मफूल है। हम्म, वेरी गुड, तुम सबने उसको याद किया। शाबाश, वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकी, बहुत अच्छे। सबने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर म्यूट कीजिए। जुमला फेलिया में मुतल्लिक़ फेल। जलसा ज़ैदुन अलल कुर्सी। जलसा फेले माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, पहला सीगा। ज़ैदुन हालत रफा में फाइल। अलल कुर्सी जी, ये क्या है, अब इसको समझो। जो इसकी ट्रांसलेशन बनती है वो है जैद कुर्सी पर बैठा। स्टेटमेंट देखिए, बाज औकात जुमला फेलिया में फेल, फाइल और मफूल के अलावा कुछ और अज्जा भी होते हैं, इन्हें मुतल्लिके फेल कहा जाता है। ठीक है, अब ज्यादातर ये जार मजरूर आते हैं, मुरक्कब जारी। ठीक है, तो ये अलल कुर्सी ही मुतल्लिके फेल है, यानी अब आपको अगर जुमला फेलिया में फेल के बाद फाइल और मफूल के अलावा इस तरह से जार और मजरूर इसम मिल जाए, तो वो मुतल्लिके फेल कहलाएगा। अब जुमला फेलिया के अज्जा देखिए कैसे, फेल, फाइल, मफूल और मुतल्लिके फेल। ठीक है, हमने कहानी कहाँ से शुरू की थी, ये फेल और फाइल से, फिर मफूल ऐड हुआ, फिर मफूल हमने ज़मीर को बतौर मफूल सीखा। अब हम जुमला फेलिया में एक और चीज देख रहे हैं कि उसमें मुतल्लिके फेल भी होता है। देखिए, जलसा जईदुन अलल कुर्सी। जलसा फेल, जईदुन फाइल है, और अलल कुर्सी मुतल्लिके फेल है। क़राअत तुल्लाबुल कुरआना फिल मस्जिदी। तालिब इल्मों ने कुरान मस्जिद में पढ़ा। करा
काफ रा आइन पढ़ना, फ़ाला का वजन है। अत्तुलाबु फाइल है हालत रफा में। अल कुरआन मफूल है। फिल मस्जिदी जार मजरूर मुतल्लिक फेल। इंशाल्लाह जो अगली हम एक क्लास रखेंगे ना, उसमें मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस करना सिखाऊंगी कि हम किसी भी अरबी इबारत का एनालिसिस कैसे करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा इसको और समझते हैं। दखलत फातिमतु फिल बैती, दखलत फेले माजी, वाहिद मोनस गायब का सीगा है चौथा। फातिमतु हालत रफा में है फाइल। फिल बैती यार मजरूर मुतल्लिक फेल। फातिमा घर में दाखिल हुई। दखलत सारिकानी फिल बैती, दखला फेले माजी, अस्सारिकानी हालत रफा में है, मुसन्ना है। ठीक है, इसका अदद मुसन्ना है और ये फाइल है। फिल बैती जार मजरूर मुतल्लिक फेल। दो चोर घर में दाखिल हुए। ज़रबा उसामतु इब्राहीमा बिस्सूती, ज़रबा फेले माजी, उसामतु हालत रफा में फाइल, इब्राहीमा मफूल हालत नसब में। बिस्सूती बाहर जर, और सूती मजरूर इसम, मुतल्ली के फेल। सूती कोड़े को कहते हैं। ठीक है। उसामा ने इब्राहिम को कोड़े से मारा। हफिजना दरअसल कुराना फिल मस्जिद, हफिजना फेले माजी, सीगा नंबर 14 जमा मुतकल्लिम का। ठीक है। नहनु फाइल मुस्ततिर। दरअसल कुराना, दरअसा एराब देखिए हल्का है। ठीक है। मुजाफ मुजाफ इलैह मफूल। फिल मस्जिदी जार और हरफे जर और मजरूर इसम मुतल्लिक फिल। हमने कुरान का सबक मस्जिद में याद किया। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा। जुमला फेलिया में फाइल अगर इसम जाहिर हो और मफूल इसम जमीर हो तो जुमला फेलिया की नॉर्मल तरतीब बदल जाती है। मफूल फाइल से पहले ही फेल के साथ मुत्तसिल यानी अटैच होकर आता है। जैसे ज़रबहू हामिदुन, ज़रबा फेले माजी, वादरा बाप रूट लेटर है, और हु जमीर मफूल है इसके साथ, और हामिदुन इसम जाहिर फाइल है हालत रफा। याय मुतकल्लिम के मफूल आने की सूरत में याय मुतकल्लिम की माँ कबल कसरा डिमांड पूरी करने के लिए फेल और मुतकल्लिम याय मुतकल्लिम के दरमियान एक नून लाया जाता है जिसे नूने वकाया कहते हैं। ठीक है। तो क्योंकि या जो है वो जेर डिमांड करती है, तो फिर और फेल जो है वो जेर को एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर फेल और मफूल के दरमियान नूने वकाया लिखे। जैसे ज़ोराबनी, ज़ोराबा फेल माजी और नी मफूल। जब फेले माजी के जमा मुजक्कर गायब के सीगे के बाद अगर जमीर बतौर मफूल आए तो जमा मुजक्कर गायब के सीगे के आखिर में आने वाला अलिफ लिखने में नहीं आता। ज़राबू हू, ज़राबू फेले माजी जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, हुम फाइल मुस्ततिर है इसमें, और हु अटैच्ड, हु जो है जमीर मंसूब मुत्तसिल मफऊल है यहाँ। तो देखिए जब वो अटैच हुई फेल के साथ तो वो अलिफ ड्रॉप हो गया, लिखने में नहीं है। फेल माजी के जमा मुजक्कर हाजिर के सीगे के बाद अगर जमीर मफूल आए तो जमा मुजक्कर हाजिर के सीगे के आखिर में आने वाला तुमू में बदल जाता है। जरब तुमू, जरब तुम था। ठीक है। और इसमें अंतुम फाइल था जमा मुजक्कर हाजिर का सेगा, अंतुम फाइल मुस्ततिर, और हु जमीर मंसूब मुत्तसिल ये फेल के साथ अटैच होकर आई मफूल बनी। तो अब यहाँ पर देखिए तुम से जरब तुम होना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास आगे जमीर अटैच हो रही है बतौर मफूल, तो जरब तुमू। हमने जब जुमला इस्मिया की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो तब हमने एक चार्ट बनाना शुरू किया था कि कौन कौन से अस्मा कब कब हालत रफा में, नसब में और जर में आते हैं। तो जब हमने रफा के कलेक्ट करने शुरू किए तो उसमें मुब्तदा, खबर या हर्फ निदा के बाद मुफरद इसम, खबर व इन्ना
और फिर नसब में या हरफ निदा के बाद जब मुजाफ आए वो हालत नसब में होगा, इस्म इन्ना हालत नसब में, और हालत जर, हरफ जर जो है इसके बाद आने वाला इसम मजरूर होगा, हालत जर में होगा, और मुजाफ इलैह हालत जर में होगा। फिर हमने देखा इसके बाद कि इस्मु माँ हालत रफा में होता है और खबरू माँ हालत नसब में आती है। फिर अब जब हमने जुमला फेलिया स्टार्ट किया तो हमने यहाँ सीखा कि फाइल हालत रफा में होता है और मफूल हालत नसब में होता है। ये हमारा आज हमने क्या सीखा। मफूल जमीर मुत्तसिल, एक बात हमें याद रखनी है कि जो गायब के ज़मायर हैं वो आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए आ सकते हैं, जबकि हाजिर और मुतकल्लिम के ज़मायर सिर्फ आकिल के लिए इस्तेमाल होते हैं। मफूल की जगह मुनासिब ज़मीर का इस्तेमाल सीखा, जुमला फेलिया में मुतल्लिक़ फ़ेल देखा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।